آداب عرض ہے MCN اردو خبرنامے میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہر کی آبی قلت دور کرنے جنگی پیمانے پر سرگرمیاں جاری، ضلع کلکٹر کے حکم پر فوری عمل درآمد کے تحت 400 کمرشل نلوں پر آنن فانن لگا دیے گئے واٹر میٹر۔ بچہ مزدوری کو سماج سے ختم کرنے اور بچپن محفوظ کرنے و حقوق اور تعلیم اطفال کے تئیں عوامی بیداری پیدا کرنا ضروری، کہا ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے۔ تحفظ اطفال بچہ مزدوری کے تدارکی ہفتے کے تحت IEC بلون وین کو دکھائی ہری جھنڈی۔ بارش کے موسم میں وبائی امراض کی دستک سے پہلے ہی میونسپل صحت عملہ ہوا مستعد، سلم اور گنجان بستیوں میں کیا گیا بچاؤ اور تدارکی اقدامات کا آغاز۔ اور حصول علم کو کامیابی کی ضمانت سمجھنے والی ایک دلہن نے امتحانی پرچے کو دی لگن منڈپ پر فوقیت، پرچہ دے کر پہنچی شادی ہال، سسرالیوں اور دیگر حلقوں نے کی دلہن کی ستائش۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ناظرین، شہر کے آبی فراہمی نظام میں بہتری کے لیے ضلع کلکٹر نے گزشتہ روز دیے احکام کے تحت شہر میں 400 کمرشل نل کنیکشن پر میٹر نصب کر دیے گئے ہیں اور ان کمرشل نل والوں کو میٹر کے مطابق اب بل ادا کرنے ہوں گے۔ شہر اور شہریان کو درپیش پانی کی قلت کے مسئلے کے حل اور یکساں آب رسانی کو یقینی بنانے کے لیے میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے نے کئی ٹھوس منصوبہ بندیاں اور اقدامات کیے ہیں۔ دریں اثنا گزشتہ روز نگراں و ایڈیشنل کمشنر اور ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے آب رسانی کے افسران اور لائن مینوں کی جائزہ و مشاورتی میٹنگ کے دوران شہر کے تمام کاروباری و کمرشل نل کنیکشنوں پر واٹر میٹر لگائے جانے کے حکم دیے تھے اور اس حکم پر فوری عمل آوری پر زور دیا تھا۔ متعلقہ حکام و ملازمین نے بھی اس سلسلے میں مستعدی دکھائی اور بڑی تیزی سے کمرشل نلوں پر میٹر لگائے جا رہے ہیں۔ ذرائع نے بتلایا کہ اب تک 400 سے زائد نلوں پر میٹر نصب بھی کیے جا چکے ہیں۔ ساتھ ہی متعلقہ انجینئرز کو حکم دیا گیا تھا کہ کمرشل نل کنیکشنوں کا سروے کیا جائے۔ سروے کے بعد انجینئرز نے سردست 400 واٹر میٹر کا مطالبہ کیا تھا جو فوری فراہم کر دیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان واٹر میٹروں کی تنصیب میں شہر کے کاروباری اداروں کے مالکان، کاروباری اور تجارتی عمارتوں کے مالکان از خود انتظامیہ سے تعاون کر رہے ہیں۔ ان 400 واٹر میٹرز میں 300 میٹر آدھا انچ، 60 پونا انچ اور 20 1 انچ و 20 2 انچ سائز کے میٹر شامل ہیں اور ان کے سائز کے مطابق پانی کے بل وصول کیے جائیں گے۔ بالفاظ دیگر اب تجارتی و کاروباری استعمال کنندگان کو بوند بوند پانی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ بچہ مزدوری کا سماج سے خاتمہ کر کے نونہالوں کو تعلیم دے کر ان کا بچپن سنوارا جائے، اس مناسبت سے بہبودی خواتین و اطفال اور چائلڈ لائن کی مشنریاں کام کریں۔ اس طرح کے احکام ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے بچہ مزدوری کے خاتمے سے متعلقہ منائے جا رہے ہفتے کے ایک پروگرام میں دیے ہیں۔ کلکٹر موصوف نے اس موقع پر عوامی بیداری کے لیے IEC بلون وین کو بھی نیک خواہشات کے ساتھ روانہ کیا۔ حقوق اطفال تحفظ سمیتی کی ضلع صدر ایڈوکیٹ آشا شیر خان نے چائلڈ لائن کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اپا صاحب جھانبڑ، سینٹر سمنویک انپورنا ڈھورے، مراٹھواڑہ دیہی ترقیاتی سنستھا کے منسوخ جھانبڑ، دامنی پتھک کی آشا گائیکواڑ اور LG جادھو و دیگر متعلقہ دفاتر کے ملازمین اس اجلاس میں موجود تھے۔ عیاں رہے کہ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت 12 تا 20 جون بچہ مزدوری انسدادی ہفتہ منایا جا رہا ہے، جس کے تحت مختلف پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ ضلع کلکٹریٹ کے احاطے میں بچہ مزدوری کا خاتمہ کر کے بچپن بچاؤ کا میسیج لکھ کر ضلع کلکٹر نے دستخط کر کے بنفس نفیس اس مہم کا آغاز و افتتاح کیا۔ بچہ مزدوری سے متعلق شکایتوں کے اندراج کے لیے 1098 اس ٹول فری نمبر پر رابطہ کر کے اپنے اطراف دیکھے گئے بچہ مزدوروں کو چھٹکارا دلانے اور بچپن کو محفوظ کرنے کی اپیل بھی سنیل چوہان نے اس موقع پر کی۔ دریں اثنا پروگرام میں موجود شرکاء نے بھی بچہ مزدوری روکنے سے متعلق پیامات لکھ کر
दस्तखत किए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के लीडर महबूब खान पर ज्यादती की पुलिस में दी गई शिकायत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मुतालिका खातून ने शादी के झांसे और उसके साथ ज्यादती का वीडियो बनाने वाले मुलजिम नदीम फिटर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और महबूब शेख के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करने पर मजबूर करने की वजाहत इस शिकायत में की गई है। मुतासिरा खातून की जानिब से पुलिस में दी गई इस फरियाद अर्जी में रुकने असेंबली सुरेश धस और भाजपा की लीडर चित्रा वाघ के भी नामों का जिक्र है। मुताल्लिका शिकायत कुनिंदा खातून ने मुलजिम नदीमुद्दीन अलीउद्दीन शेख उर्फ नदीम फिटर से मुताल्लिक लिखवाया है कि उसने उसकी इस्मत रेज़ी की और इस शर्मनाक मंजर का वीडियो भी बनाया और उसे महबूब के ख़िलाफ़ झूठी शिकायत दर्ज करने पर मजबूर किया और जब नासिक में झूठा केस दर्ज करने की कोशिश नाकाम हो गई तो औरंगाबाद में केस दर्ज करवाया गया और महबूब शेख पर मामला दर्ज हो जाने के बाद मज़कूरा मुतासिरा खातून को बीड़ में सुरेश धस के होटल ले जाया गया और सुरेश धस व मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात का जिक्र भी इस नई शिकायत अर्जी में खातून ने किया है। नीज़ कहा गया है कि शिकायत कुनिंदा ने सुरेश धस की लिखकर दी हुई स्क्रिप्ट ही मीडिया को दी, जबकि चित्रा वाघ ने उसे बतलाया था कि मीडिया के सामने उसे क्या और किस तरह बयान देना है। बारिश का मौसम आ पहुंचा है। इस मौसम में शहर और खुसूसन गुंजान आबादी और स्लम बस्तियों में गंदगी और पानी जमा होने के सबब वबाई अमराज का ख़तरा बढ़ जाता है। इसी के पेश नज़र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मुताल्लिका शोबे सेहत का अमला मुस्तैद हो गया है और शहर में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। नाजरीन, बारिश के इस मौसम में खुसूसन गंजान आबादियों वाले महलों और नालों से करीब बसी बस्तियों और नशेबी बस्तियों में पानी जमा होने से और नालों व नालियों में कूड़ा करकट और गंदगी बहकर आने से मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम और मच्छर पैदा हो जाते हैं और वबाई अमराज मलेरिया, कॉलरा और गैस्ट्रो जैसे अमराज सर निकालने लगते हैं। इन खदशात पर बरवक्त या वक्त रहते एहतियाती इक़दामात के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमला मुस्तैद हो गया है और ज़्यादा जोखम भरे या मखदूश इलाक़ों को टारगेट करके यहाँ रोकथाम की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इसी सिलसिले में जोन नंबर 5 के तहत मखदूश इलाका चिश्तिया कॉलोनी में खुसूसी बचाव मुहिम के लिए मलेरिया सुपरवाइज़र व मुलाजिमीन और शोबे सेहत के दीगर एहलकारों को तरबियत देने का नज़्म किया गया। ज़राए ने बतलाया है कि आइंदा दिनों ये बचाव और तदारुकी मुहिम शहर भर के महलों और इलाकों में चलाई जाएगी, जिसमें सफाई, दवाओं के छिड़काव और पानी की जांच व जरासीम कुश फवारनी जैसे काम शामिल हैं। नीज़ शहरियान से भी अपील की गई है कि वो अपने घर और अतराफ व महलों की सफाई का खुसूसी ख्याल रखें और बचाव व सफाई और बीमारियों के तदारुक की इस मुहिम में इंतज़ामिया से ताउन करें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में कई कुएं तहवील में लिए थे जिनसे टैंकरों के जरिए आबी फराहमी मकसूद थी। जागीरदार कॉलोनी के 2 कुएं तहवील में लिए गए थे, ताहम उनमें से एक कुएं की सफाई का काम हनूज हो नहीं पाया है। नाजरीन, शहर में आबी किल्लत दरपेश है और इस पर काबू पाने के लिए हुकूमती तमाम तर मिशनरियाँ सरगर्म अमल हैं। रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक बलदिया उज़्मा ने कई निजी कुएं तहवील में लिए थे ताकि उनसे पानी की निकासी करके टैंकरों के जरिए दूर पास की बस्तियों को पानी सप्लाई किया जा सके। तहवील में लिए गए इन कदीम कुओं में रेलवे स्टेशन रोड पर RTO ऑफिस के सामने वाक़ जागीरदार कॉलोनी के 2 कुएं जिनमें पानी मौजूद है, ये कुएं भी शामिल हैं और इन कुओं में से एक कुएं से फौरी तौर पर भौसिंगपुरा, पेठेनगर व दीगर इलाकों को टैंकरों से पानी भिजवाया भी जाने लगा। दूसरे कुएं से भी इसकी सफाई और कचरा व गाल निकासी व झाड़ियों के कटवाने और साफ सफाई के बाद पानी देने का फैसला किया गया था और इस कुएं से पानी मिलने की सूरत में कोटला कॉलोनी के टैंकरों का बोझ कम होकर आबी फराहमी में सहूलत हो सकती है। ताहम इस कुएं की सफाई अभी तक हो ही नहीं पाई है। अब देखना यह है कि ये काम कितनी तुंदही और मुस्तैदी से किया जाएगा। किसानों को तुखमरेजी और बोयाई का मरहला दरपेश है। ताल्लुका अहमदपुर में बीज की खरीदारी के लिए किसानों का जम्मे गफीर कृषि सेवा केंद्र पर उमड़ पड़ा है। नाजरीन, बारिश के मौसम का आगाज़ हो चुका है। इब्तदा में कई मकामात पर बारिश अपनी शुरुआती दस्तकें भी दे चुकी है। दरी असना किसानों ने अपने खेत खलियान बोयाई व तुखमरेजी के लिए तैयार भी कर लिए हैं और अब मरहला दरपेश है पेरनी के लिए बीज के हुसूल का।
माह जून की 19 तारीख तक अहमदपुर तालुके के अहमदपुर मंडल में 145 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। किसान बीज की खरीदारी की तगदौ में हैं। तालुके के शिरूर ताजबंद के बाज़ार में वाक़े कृषि सेवा केंद्र पर किसानों की बेतहाशा भीड़ देखी गई। इब्तदाई बारिश में ही कुछ इलाकों में बारान रहमत के नुज़ूल के बाद किसान सोयाबीन, मूंग, उड़द, तुअर और दीगर फसलों की बोयाई के लिए बीज की खरीदारी के लिए कृषि सेवा केंद्र पर देखे जा रहे हैं। दरियासना माविन ज़रई अफसर माधव सुरोसे ने किसानों से अपील की है कि वो खरीदे जाने वाले बीज की प्रोसेसिंग और पैदावारी सलाहियतों की जांच करके ही बीज की खरीदारी करें। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नारेगांव के प्राइमरी व हाई स्कूल मराठी के कामयाब तलबा व तालिबात और सरपरस्तों का सदर मुअल्लमा के हाथों इस्तकबाल किया गया। इस इस्तकबालिये के मौके पर स्कूल की सदर मुअल्लिमा प्रिया सिंह के हाथों कामयाब तलबा और उनके वालिदैन और सरपरस्तों को गुलदस्ते पेश किए गए और तलबा की मेहनतों और वालिदैन की तरबियत की सताइश की गई, जबकि आइंदा दरख्शां मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने भी पेश किए गए। इस तकरीब में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा दानिश शेख, रुचिता चक्रे, शाहिद मिर्ज़ा, वैष्णवी मोकाशे और शान बेग ने अपने तासुरात पेश करते हुए अपने असातिज़ा से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में तलबा और सरपरस्तान तलबा और बस्ती के दीगर नामवर साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे, जबकि प्रोग्राम की कामयाबी के लिए श्रीकांत शिंदे, बेग सर, अरुणा फुलमरीकर, प्रेरणा भिलेगांवकर, रेखा महाजन, फिरोज़ खान पठान ने खुसूसी तगुदौ की। प्रोग्राम में तबड़े, बोइनवार, नदीम बेग की भी खुसूसी मौजूदगी थी। तलबा ने अपनी मादर इल्मी और असातिज़ा की सताइश की और स्कूल की मज़ीद तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। माझ्या यशाचं सगळं श्रेय म्हणजे माझ्या पॅरेंट्सला आणि माझ्या शिक्षक लोकांना शाळेच्या त्या शिक्षक लोकांनी खूप मला जे अडचणी होत्या अभ्यासामध्ये ते एकदम चांगल्या प्रमाणे समजून सांगितलेले आहे आणि मुख्याध्यापकाचंही खूप, कारण की त्यांनी खूप म्हणजे त्यांना सांगितलेलं आहे आणि त्यांनी मोटिवेशन केलेलं आहे की तुम्ही करा, तुम्ही करू शकता, 90च्या पुढे जाऊ शकता। आज जे मला यश प्राप्त झालेलं आहे ते माझ्या सर्व शिक्षकांमुळे आणि खरं तर आमच्या प्रिन्सिपल मॅडम माननीय ताजी मॅडम यांनी आम्हाला वेळेवर सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या, त्यामुळं आम्हाला अभ्यास करता आला आणि त्यामुळं आम्ही चांगले पर्सेंटेज देऊ शकलो। आणि आमच्या आईवडिलांनी, माझ्या आईवडिलांनी मला वेळोवेळी जे साहित्य लागतं शिक्षणासाठी त्यांनी सगळं मला वेळेवर उपलब्ध करून दिलं, त्यामुळे हे यश मला प्राप्त झालेलं आहे। या यशाचे माझ्या शाळेचे मुख्याध्यापक श्रीमती ताजी मॅडम, माझे क्लास टीचर, अन्य शिक्षक वर्ग आणि पालक वर्ग यांना मी याचा श्रेय देऊ शकतो। मला 89.40%। ऐन शादी के दिन एक दुल्हन का BAC का मराठी का पेपर आ गया तो उसने शादीशुदा ज़िंदगी का इम्तहान शुरू होने से पहले तालीमी इम्तहान को तरजीह दी और इम्तहानगाह से फरागत के बाद सीधे लग्न मंडप में हाजिर हो गई। इसके ससुरालियों ने भी इस मौके पर उसका ताउन किया। बताया जाता है कि इस दुल्हन मरनाल जाधव के मज़कूरा इम्तिहानी पर्चे की तारीख़ पहले 4 जून दी गई थी और उसी मुनासिबत से शादी की तारीख़ 19 जून मुकर्रर कर ली गई थी। ताहम हुआ कुछ यूँ कि इम्तिहानी इंतज़ामिया ने 4 जून का पेपर मुलतवी करके उसे 19 जून को मुकर्रर कर दिया, जिसके सबब लड़की और उसके रिश्तेदार धर्म संकट में पड़ गए थे। ताहम लड़की ने इसका हल निकालते हुए इम्तिहान और कैरियर को तरजीह दी और 19 तारीख की सुबह रास्त हरसूल सांगी के एक निजी कॉलेज में जाकर इम्तिहानी पर्चा दिया और फिर बर वक्त सिडको N11 के मंगल कार्यालय में शादी के मंडप में पहुंच गई। उसके नए ससुरालियों ने भी इस काम में ताउन किया और इस मौके पर दुल्हन मरनाल की खाला ने बड़े जज्बाती जुमले अदा किए और कहा कि यकीनन मरनाल ज़िंदगी की दौड़ में कामयाब होगी और एक बड़ी अफसर बनेगी। आइए देखते हैं क्या कहा मरनाल की खाला सुजाता प्रधान ने। नववधूची मावशी आहे आणि तिचं BCS चालू आहे सध्या आणि आम्हाला असं वाटतं की तिचं शिक्षण पूर्ण व्हावं म्हणून आम्ही आज पेपर द्यायला आलोय, कारण की पेपर हा तिचा 4 तारखेला होता, आता तो पोस्टपोन होऊन 19 तारखेला आला। आम्ही या दिवशी लग्नाची तारीख धरली होती आणि
मग आज पेपर आला तर आम्ही तिला पहिले पेपरला घेऊन आलो आणि त्याच्यानंतर लग्न मंडपात उभी करणार आहे. मुलीचं नाव मृणाल सुभाष जाधव आहे. लग्नविधी कुठे आहे? लग्नविधी हा मराठा मंगल कार्यालयामध्ये आहे. कितीचा विधी आहे? 12 वाजताचा विधी आहे. म्हणजे पेपर सुटल्या तुम्ही तिकडे निघणार? पेपर सुटल्या आम्ही तिकडे जाणार. लग्न तिची काय बनण्याची इच्छा आहे? तिचं BCS कम्प्लीट होत आहे. डिग्री कम्प्लीट झाल्यावर आम्ही ठरवू तिला काय करायचं. शिक्षणाची जिद्द आहे म्हणूनच ती आज लग्नविधीला पेपर देऊन लग्नविधीला जाणार आहे. आणि वर पक्षाने एवढे सपोर्ट केला आहे त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. कारण की त्यांच्या सपोर्टमुळे ती अजून पुढेही शिकू शकेल असं मला वाटतं. धन्यवाद. मुंबई नासिक हाईवे पर मिटमिटा के करीब सनीचर की शाम मिडोज होटल के सामने 2 बड़ के दरख्त उखड़कर गिर गए. इसी तरह आइशर शोरूम के पास 2 और उससे आगे फौजी ढाबे के करीब भी 2 बड़े दरख्त गिर गए. शदीद तूफ़ानी हवाओं और आंधी की ताब न लाकर ये कदीम दरख्त जड़ों से उखड़कर गिर पड़े, जबकि इनमें से एक दरख्त गिरने के दौरान बिजली की डीपी भी जद में आ गई और बिजली के तारों के टूट जाने से बिजली फराहमी मसदूद हो गई थी और शाहराह पर दोनों जानिब का ट्रैफिक रुक जाने के सबब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थीं. सनीचर का रोज़ होने के सबब रास्ते पर ट्रैफिक भी ज़्यादा था. ताहम 3-4 घंटे का जाम लगने से गाड़ी मालिकान को शदीद परेशानियों का सामना हुआ. इन वाक़यात की इत्तला फायर डिपार्टमेंट को दी गई तो उनका अमला फौरी जाए वक़ू पर पहुंचा और रास्ते पर गिरे दरख्तों को तेजी से हटवाया गया. इस मौके पर ट्रैफिक के माविन पुलिस इंस्पेक्टर कामे, संदीप पवार, संतोष सोनोने, सचिन शिंदे ने सख्त मेहनत के बाद रात 10 बजे तक ट्रैफिक को बहाल करने में कामयाबी हासिल की. जिला नांदेड़ के बिलोली में बलदिया की लापरवाही के सबब शहर के देही और नौतामीर शुदा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने के इलाके गंदगी और कचरे के ढेर से अटे पड़े हैं. बारिश के मौसम में इस गंदगी से सेहत आम्मा को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं. साकिनान ने फौरी तवज्जो का मुतालबा बलदिया बिलोली इंतज़ामिया से किया है. बिलोली शहर के कुंडलवाड़ी रोड से मुत्तसिल देही अस्पताल और अवाम के नाम मंसूब किए जाने की राह देख रहे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागेश लखावाड़ की मुस्तैदी और देखरेख के सबब अस्पतालों के अंदरूनी अहाते व अस्पताल गो के साफ़ सुथरे नज़र आते हैं. ताहम बिलोली बल्दिया की लापरवाही और अनदेखी के सबब अस्पताल के बाबुद दाखिला के सामने खुली बह रही नाली के सबब ऐन मौसम 12 में ग़िलाज़त व गंदगी का ताफ़ुन फूटने से शहरियान व अस्पताल में आने वाले मरीज़ों व दीगर लोगों को नित नए अमराज लाहक होने का ख़तरा पैदा हो गया है. आया रहे कि एक तरफ तो बिलोली बलदिया शहर की साफ़ सफाई के लिए यौमिया 30,000 और माहाना 9 लाख रुपये खर्च करती है, ताहम अस्पताल से करीब के हसास तरीन इलाक़ों की सफाई से लापरवाही माना खेज़ है. वैसे मशाहिदे में आया है कि सफाई के मामले में शहर के कई वार्डों में भी इसी तरह की सूरत हाल है और गंदगी और ताफ़ुन का राज है. अवाम व साकिनान ने बलदिया के मुताल्लिक़ा अरबाब मजाज से फौरी नींद से बेदार होने और तवज्जो देने का मुतालबा किया है. किसी नामालूम गाड़ी की टक्कर से शदीद ज़ख्मी हुए मोटरसाइकिल सवार की दौरान इलाज मौत हो गई. ये वारदात ताल्लुका पैठन के मोरमा के इलाके में पेश आई. धुलिया शुलापुर हाईवे पर ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात मोरमा के इलाके में यह हादसा गुज़िश्ता शब 10 बजे के करीब पेश आया. तफसीलात के मुताबिक अंबर तालुक़े के दून गाँव के साकिन प्रभाकर विष्णु उबाले अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़कर वापस अपने गांव की जानिब अपनी मोटरसाइकिल MH21 BJ 9347 पर जा रहे थे. दौरान सफ़र मज़कूरा मकाम पर वाक़े महावीर जिनिंग के करीब औरंगाबाद से बीड़ की जानिब जा रही किसी बड़ी गाड़ी ने उनकी दुपहिया गाड़ी को अक़ब से ज़ोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद गाड़ी वाला वहां से फ़रार हो गया. मोटरसाइकिल सवार प्रभाकर शदीद ज़ख्मी हो गए. हादसे की इत्तला दोन गाँव के साकिनान को मिली तो वो फौरी जाए हादसा पर पहुँच गए और एक निजी गाड़ी में डालकर जख्मी को औरंगाबाद के धूत अस्पताल लाया गया. ताहम रात देर गए दौरान इलाज प्रभाकर उबाले ने दम तोड़ दिया. हादसे का इंदराज पाचोड़ पुलिस थाना में कर लिया गया. मजीद तहकीकात माविन इंस्पेक्टर गणेश सुरोसे की रहनुमाई में बीट जमादार किशोर शिंदे व फिरोज बर्डे कर रहे हैं. नाज़रीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले.
शहर की आबी किल्लत दूर करने जंगी पैमाने पर सरगर्मियां जारी। जिला कलेक्टर के हुक्म पर फौरी अमल दरामद के तहत 400 कमर्शियल नलों पर आनन फानन लगा दिए गए वाटर मीटर। बच्चा मजदूरी को समाज से ख़त्म करने और बचपन महफूज करने व हुकूक और तालीम अतफाल के तई अवामी बेदारी पैदा करना ज़रूरी, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। तहफ़्फ़ुज़ अतफाल बच्चा मजदूरी के तदारुकी हफ्ते के तहत IEC बलून वैन को दिखाई हरी झंडी। बारिश के मौसम में वबाई अमराज की दस्तक से पहले ही म्यूनसिपल सेहत अमला हुआ मुस्तैद। स्लम और गुंजान बस्तियों में किया गया बचाव और तदारुकी इक़दामात का आगाज। और हुसूल इल्म को कामयाबी की ज़मानत समझने वाली एक दुल्हन ने इम्तिहानी पर्चे को दी लग्न मंडप पर फौकियत, पर्चा देकर पहुंची शादी हाल। ससुरालियों और दीगर हलकों ने की दुल्हन की सताइश। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज़।